حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ سمیت حیدرآباد میں بھی شدید سردی کی لہر، درجہ حرارت غیر معمولی حد تک گر گیا۔ معین آباد میں 6.7 ڈگری ریکارڈ، آئندہ دنوں سردی میں مزید اضافے کا انتباہ۔ نامپلی فوجداری عدالت کے احاطے میں بم رکھے جانے کی اطلاع، کورٹ سٹاف کا تخلیہ کرواتے ہوئے مکمل تلاشی لی گئی، بم کی اطلاع جھوٹی ہوئی ثابت۔ نیشنل ہیرالڈ مقدمہ مرکز کی مودی حکومت کے خلاف، کانگریس کا ریاست گیر زبردست احتجاج، وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی، انتقامی سیاست کا الزام۔ KYC مکمل نہ کرنے والوں کا راشن کوٹا ہوگا معطل، تلنگانہ سول سپلائز کا سخت انتباہ، ہر راشن کارڈ ہولڈر کو بائیو میٹرک KYC کروانا لازمی۔ BRS سے کانگریس میں شامل 5 ارکان اسمبلی کو راحت، اسپیکر نے نااہل قرار دینے کی درخواست کر دی مسترد، فیصلہ جمہوریت کا قتل، KTR کا رد عمل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد میں شدید سردی کی لہر نے ایک بار پھر اپنی شدت دکھانا شروع کر دیا ہے۔ آج 18 دسمبر کو ریاست کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت غیر معمولی حد تک گر گیا، جہاں حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں میں معین آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 6.5 ڈگری سیلسیس اور ابراہیم پٹنم میں 7.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہیں شہر کے مرکزی GHMC علاقوں میں بھی سردی کی شدت واضح رہی۔ سری لنگم پلی، مولا علی، راجندر نگر اور گچی باؤلی جیسے علاقوں میں درجہ حرارت 8 سے 11 ڈگری کے درمیان رہا۔ ریاست کے شمالی اور مغربی اضلاع میں صورتحال مزید سنگین ہے۔ آصف آباد میں 5.7 ڈگری سیلسیس کے ساتھ سب سے کم درجہ حرارت درج ہوا ہے، جبکہ سنگاریڈی، رنگاریڈی، عادل آباد اور وقار سمیت کئی اضلاع میں پارہ 6 سے 9 ڈگری تک گر چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ رات سے سردی کی لہر میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ شمالی اور مغربی تلنگانہ میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری، جبکہ شہر حیدرآباد میں 7 سے 9 ڈگری سیلسیس تک گرنے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر شہریوں کو خاص طور پر بزرگوں، بچوں اور بیمار افراد کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ شہر کے نامپلی فوجداری عدالت کے احاطے میں آج بم رکھے جانے کی اطلاع دی گئی، جس کے بعد کورٹ کمپلیکس میں افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک ای میل روانہ کرتے ہوئے انتباہ دیا گیا تھا کہ کورٹ کے احاطے میں بم رکھا گیا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اس ای میل کے ساتھ ہی عدالت کے احاطے میں افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پولیس اور بم کو ناکارہ بنانے والے عملے کو طلب کر لیا گیا اور عدالت کے احاطے کی جامع اور مکمل تلاشی لی گئی۔ کورٹ کے کئی عدالتوں کے احاطے کا تخلیہ کروایا گیا اور کورٹ کے سٹاف اور وکلاء وغیرہ کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ وکلاء، کورٹ کا سٹاف اور مقدمات کے سلسلے میں عدالت کو پہنچے عوام کی کثیر تعداد عدالت کے باہر جمع ہو گئی تھی۔ کہا گیا ہے کہ تمام افراد کو عدالت کے احاطے کے باہر کرتے ہوئے مکمل تلاشی لی گئی تھی۔ مکمل جانچ پڑتال کے بعد بم رکھے جانے کی اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ یہ پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ای میل کس نے روانہ کیا تھا۔ نیشنل ہیرالڈ مقدمے میں کانگریس قائدین سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف کارروائی کو انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے کانگریس اور یوتھ کانگریس کی جانب سے آج شہر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کئی کانگریس قائدین اور کارکنوں نے اس احتجاج میں حصہ لیا اور کہا کہ مرکزی حکومت انتقامی جذبے کے ساتھ کانگریس قائدین کے خلاف مقدمات درج کر رہی ہیں اور یہ تمام فرضی مقدمات ہیں، ان میں کسی طرح کی سچائی نہیں ہے۔
इन कारकुनों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ और कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ताईद में जबरदस्त नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी और हुकूमत को इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला बंद करना चाहिए। सदर प्रदेश कांग्रेस मिस्टर महेश कुमार गौड़ ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया और इनकी क़ियादत में कांग्रेस कारकुन सड़क पर बैठ गए और कहा कि नरेंद्र मोदी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इन कायदीन के एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो गई। नेशनल हेराल्ड केस को बुनियाद बनाकर मरकज की बीजेपी हुकूमत की जानिब से कांग्रेस के सीनियर कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सियासी तौर पर हिरासा किए जाने के खिलाफ आदिलाबाद में कांग्रेस कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाज किया। डीसीसी सदर नरेश जाधव की क़ियादत में कांग्रेस कायदीन व कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। तहम पुलिस की जानिब से रोकने पर वहां कुछ देर के लिए कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बाद एहतजाज में शामिल कई अहम कायदीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी के इशारों पर मरकजी इदारों का गलत इस्तेमाल करते हुए मनगढ़ंत और गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और जमहूरी इक़दार को पामाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है। इसके बावजूद ईडी और अदालती कार्रवाइयों के जरिए खौफ व दबाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे अतखंडों से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। సోనియా గాంధీ గారిని గత 10 సంవత్సరాల నుండి వేధిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు కోర్టు కూడా చెప్పినా కూడా వినకుండా కోర్టులని ఈడీలని వారి గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖునీ చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అసలు ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుండి కూడా ఎప్పుడు ఇలాంటి ఈ అటానమస్ బాడీ వ్యవస్థ లేనటువంటి స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలను వారి గుప్పిట్లో పోతున్నారు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో రాహుల్ గాంధీ గారిని సోనియా గాంధీ గారిని క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడం జరిగింది. तेलंगाना महकमा सिविल सप्लाईज ने सख्त इंतबा जारी करते हुए वजाहत की है कि राशन कार्ड के तमाम मुस्तहिकीन के लिए EKYC की तकमील लाजमी करार दी गई है और इस अमल को मुकम्मल ना करने वालों का राशन कोटा रोक दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाईज ऑफिसर मेहदीपट्टनम बुशरा सुल्ताना ने बताया कि राशन कार्ड में दर्ज हर रुकन को अपनी करीबी राशन दुकान पर पहुंचकर ई-पास मशीन के जरिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अपडेट करवाना होगा, क्योंकि सिर्फ वही अफराद राशन हासिल करने के अहल होंगे जिनके EKYC मुकम्मल होगी। महकमा ने बताया कि इस सिलसिले में मुतअद्दिद मरतबा अवाम को हिदायत दी जा चुकी है। इसके बावजूद ताखिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिविल सप्लाईज हुक्काम ने खबरदार किया है कि EKYC मुकम्मल ना करने वाले राशन कार्ड होल्डर्स का राशन कोटा मुअत्तल रहेगा। मैं बुशरा सुल्ताना, असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर मेहदीपट्टनम सर्किल। जी, मैं जब भी मीडिया में आती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है या कुछ अपने आवाम के साइड से कुछ चीज़ पेंडिंग है जो करना ज़रूरी है, तभी मैं आके बोलती हूँ ताकि वो काम आसानी से और अच्छे से हो जाए। देखिए, मेरे पास मेहदीपट्टनम सर्कल में, अब मैं पहले ही बोली, EKYC बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी रेशन कार्ड होल्डर्स, बड़ी मुश्किल से आप लोग को खुद पता है आवाम को कि रेशन कार्ड कितनी मुश्किल से आप लोगों को बना, लाइन में ठहर के करके इंस्पेक्शन करके रेशन कार्ड बना लिए। एक छोटा सा काम है, EKYC करा लो। शॉप जो नज़दीक की शॉप रहती, मान शॉप को जाइए, मेरे मेहदीपट्टनम सर्किल में पूरे शॉप ओपन करा के हूँ मैं, तो जो भी शॉप पे, नज़दीक की शॉप पे जाइए, वहाँ EKYC कराने का प्रोसेस क्या है, वो तो नज़दीक की शॉप पे जाके वहाँ ई-पास के थ्रू अपना थंब या जो भी आइस के थ्रू जो भी है EKYC करा ले सकते। EKYC राशन कार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कार्ड सेफ रहता, टेक्निकल इश्यूज़ नहीं आते, आप राशन हर महीने ले सकते। मैं लास्ट टाइम पे भी बोली EKYC कराना बहुत ज़रूरत है। जितनी भी मेरी मेहदीपट्टनम सर्किल, नॉट ओनली मेहदीपट्टनम, मेरा तो एरिया मेहदीपट्टनम है, मैं हैदराबाद की तमाम पब्लिक को यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, राशन कार्ड जिसके भी पास है, नज़दीक की दुकान को जाइए, EKYC करा लीजिए।
आपका कार्ड सेफ रहता, प्रॉब्लम नहीं रहता। फिर भी मैं इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी, पब्लिक को बोलने के बाद भी, दुकाना तुम लोगों के लिए दुकाना एक्चुअली बंद हो गया। 17 तारीख ही लास्ट डेट थी डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर भी हम डीलर्स को बोल के, डीलर्स बेचारे पूरे दुकाना खुले रख के करके बैठे हुए हैं। उन लोग हार्ड वर्क करें। आप लोग जाओ नज़दीक की दुकान को जाके EKYC करा लीजिए। जिसका एक बार फैमिली को ले लेके दुकान पे चले जाइए। जैसा EKYC होता है इसके बाद हर महीना कोई एक जने जाके राशन ले सकता। लास्ट टाइम बोलने के बाद भी प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं आया। 68 मेहदीपट्टनम का 68% EKYC कंप्लीट हुआ। बाकी के 32% जो भी है वैसा ही पेंडिंग लगा के बैठे हुए। लास्ट टाइम तक प्रॉब्लम, अपने पास प्रॉब्लम एक है, लास्ट टाइम तक वेट करते, सडनली गए करे, प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ बोले तो फिर टेक्निकल इश्यू वो ये शुरू हो जाता है। इसके लिए मैं अगर बोल रही हूँ तो आपके अच्छे के लिए बोलती हूँ। EKYC राशन कार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नज़दीक की दुकान को जाइए, ये महीने में जाइए, जाके EKYC कराना ज़रूरी है। करा लेके करके इत्मीनान से घर पे बैठिए। हर महीना जाके कोई एक राशन ले सकता। प्लीज़ कैसा भी करा लीजिए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने उम्मीद पोर्टल इंतखाबी फहरिस्तों की नज़रसानी यानी SIR और शहर हैदराबाद में बढ़ते हुए कत्ल के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इन तमाम उमूर पर अवामी शऊर बेदार करने का वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दिया है। फोरम के ज़िम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में वक्फ ट्राइब्यूनल की जानिब से औकाफी जायदादों के उम्मीद पोर्टल में इंदिराज की मोहलत में 3 माह की तोसी का खैर मकदम करते हुए अपील की कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर मुकर्ररा वक्त में तमाम जायदादों का इंदिराज यकीनी बनाया जाए, जिसके लिए रज़ाकाराना बुनियादों पर ऑनलाइन रहनुमाई और मुफ्त खिदमात फराहम की जाएँ। SIR के अमल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए फोरम ने कहा कि मुख्तलिफ रास्तों में इसके जरिए मुसलमानों और पसमानदा तबकात को निशाना बनाए जाने की इत्तलात तशवीशनाक है। इसलिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिलखुसूस हैदराबाद के अवाम को होशियार रहते हुए दस्तावेजात की तैयारी और वोटर लिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में आगे आना चाहिए। हता के बूथ सतह पर वोटर वॉलंटियर्स की तैनाती पर भी गौर किया जाए। इस तरह शहर में कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों, शादियों में फजूल खर्ची, नाच गाने और असला कल्चर पर सख्त तनकीद करते हुए फोरम ने एक साले मजहब और पुरअमन मुआशरे की तश्कील पर जोर दिया और कातिलों के समाजी बाइकॉट की तजवीज़ पेश की। साथ ही आइमा मसाजिद व खतीब हजरात से अपील की गई कि वो जुमा के खुतबात और अवामी मजालिस के जरिए इन हसास मौज़ूआत पर रहनुमाई करते हुए समाज को दुरुस्त सिमत दे। स्पीकर असेंबली मिस्टर जी प्रसाद कुमार ने BRS से कांग्रेस में शामिल होने 5 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने BRS की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। स्पीकर प्रसाद कुमार ने 5 मुनहरफ अरकान के खिलाफ मुकम्मल समाअत के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इस बात के कोई सबूत व शवाहिद मौजूद नहीं है कि ये अरकान असेंबली BRS को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये अरकान असेंबली 2023 के असेंबली इंतखाबात में BRS के टिकट पर असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे और इनके खिलाफ BRS ने स्पीकर से शिकायत की थी। 5 अरकान असेंबली में मिस्टर A गांधी, G महिपाल रेड्डी, T वेंकटराव, T कृष्णा मोहन रेड्डी और प्रकाश गौड़ शामिल हैं। स्पीकर ने इन तमाम को नाअहल करार देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इस दौरान BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने स्पीकर के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा कि यह फैसला जमहूरियत का कत्ल है। वाज़ेह सबूत व शवाहिद के बावजूद स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कहा जा रहा है कि BRS स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने पर गौर कर रही है। వదిలిపెట్టి 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినారు. మీరు చూసే ఉంటారు. స్పీకర్ గారికి కనబడతలేదంట. ఏది ఎమ్మెల్యేలు సిగ్గు లేకుండా వాళ్ళే చెప్పుకున్నారు. మీరు చూసే ఉంటారు. ఇక మీ పక్కనే ఉంటుంది నియోజకవర్గం, ఎక్కువ దూరం లేదు, ఇటుకెళ్ళి ఒక 30-40 కిలోమీటర్లు స్టేషన్ కన్పూర్. కడియం శ్రీహరి గారు ఆయన్నే చెప్పుకుంటున్నాడు, నేను అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్ లో చేరినా అని ఉపన్యాసాలు ఇచ్చిండు మైకులలో. కానీ స్పీకర్ కనబడతలేదంట. స్పీకర్ కనబడతలేదంట, వినబడతలేదంట. అంటే ఎంత గలీజు, ఎంత వికృతమైన రాజకీయం అంటే స్పీకర్ గారేమో ముఖ్యమంత్రి ఏం చెప్తే అది ఆయన చేస్తా ఉన్నాడు. ఇంకా గలీజ్ ఏంటంటే 10 మంది ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే పోయినారో వాళ్ళు ఇలా ఆడనా మొగనా చెప్పమంటే చెప్పాలని పరిస్థితులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏ పార్టీ రాబాయి నీదంటే ఏ పార్టీ ఆనికి తెలియదు. ఎంత సిగ్గుమాలిన పరిస్థితి. ఒక్కొక్కరు 70 ఏళ్ళకి వస్తుంది,
75 ఏళ్ళకి వచ్చిండు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి. ఏం రోగమైనా నాకు అర్థం కాదు ఈ వయసులో. ఓసారి స్పీకర్, ఓసారి మంత్రి, ఇంకేం చేస్తాడు కేసీఆర్? నీకు సిగ్గు లేకుండా కాంగ్రెస్ లో చేరి ఇలా ముఖం ఎక్కడ పెట్టుకోనా తెలియక కాంగ్రెస్ లో దిక్కు కూర్చున్నాడు. ఏది అసెంబ్లీలో కూర్చుంటే మొన్న స్పీకర్ ముంగట మనోళ్ళు అడిగిరట, మరి నువ్వు మా ఓన్ అయితే గట్టెందుకు కూర్చున్నావా? బాత్రూమ్ దగ్గర ఉంది, జల్లి పోయేది ఉంటది. అదో బతుకా నీది? నాకు అర్థం కాదు. ఏం బతుకు? ఇంతకాలం 70 ఏళ్ళు సంపాదించిన పేరంతా నాశనం చేసుకుంటే రేవంత్ రెడ్డి సంకల చేరి. ఎందుకు ఆ బతుకు? నాకు అర్థం కాదు. చచ్చిపోయింది న్యాయం కాదు దానికంటే. ఎందుకు ఆ బతుకు? 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఏం బతుకది? గబ్బిలాలు కదా సూరు పట్టుకొని ఎలాడినట్టు అక్కడికి పొగ పెడుతుంటే సి అని కొడుతుంటే ఏ పార్టీ చెప్పుకోలేని పరిస్థితి. ఓ పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తాడు కడియం శ్రీహరి. ఏదో కడియం అంటే కమిట్మెంట్, క్యారెక్టరా కాకరకాయన ఏ ఆయన చెప్తున్నాడు. నేను చూస్తున్నా, ఆడ పోతున్నప్పుడు చూస్తున్నా వరంగల్. కమిట్మెంట్ అడు. ఏం కమిట్మెంట్? ఏమిటిది? ఏ పార్టీలు ఉన్నావా అంటే అతి తెలివి. యా పార్టీలు ఉండాలో ఆ పార్టీలనే ఉన్నాడు. ఎట్లుంటదంటే ఇప్పుడు మీ కొడుకో బిడ్డనే ఉంటారు. ఇక ఇంటికి రాలేదు, ఆలస్యమైంది, లేటుగా అవుతుంది, రాత్రి 9 అవుతుంది, 10 అవుతుంది, సలిపూట. ఏడున్నాడు రా పిల్లగాడని నువ్వు ఫోన్ చేస్తావు అనుకో. ఏడున్నారా కొడుక అంటే 7 ఉండాలనో గాడినే ఉన్నా అన్నాడు అనుకో. ఏమనిపిస్తుంది? దౌడమికలు ఒకటి తప్పబుద్ధి కాదు. గట్లే ఉన్నది కత్తియాల మన పాటలకి వెళ్ళి పోయిన లేదు. हुस्नाबाद हल्के असम्बली में रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर ने मुकामी कायदीन और कारकुनों के हमरा बाइक पर दौरा करते हुए म्यूनसिपालिटी की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों का मुआयना किया। रियासती वजीर ने मुकामी कारकुनों और कायदीन के हमरा अम्बेडकर भवन का मुआयना किया और वहां सीसी रोड की तामीर के अलावा पानी की निकासी के लिए किए गए कामों का भी जायजा लिया। इसके अलावा कई मुकामात पर नालों, सड़कों और कम्युनिटी हॉल्स की तामीर और जंक्शन को बेहतर बनाने के कामों का भी मुआयना किया। रियासती वजीर ने तरक्याती कामों के सिलसिले में म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी और कई तजावीज़ भी पेश की। ज़ेरे इल्तिबा कामों को तेज करने और इन्हें मुकर्ररा वक्त में पूरा करने पर भी जोर दिया गया। रियासती वजीर ने मुकामी अवाम से बातचीत की और इनके मसाइल से ताल्लुक़ से वाक़फियत हासिल की और कहा कि वो अपने मसाइल ओहदेदारों से रुजू करें जिन्हें फौरी हल किया जाएगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इमारत व शौरय विकास राज ने राजेंद्र नगर में ज़ेरे तामीर नए हाईकोर्ट बिल्डिंग के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस नई इमारत को इंतहाई असरी और बेहतरीन अंदाज में तामीर करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। ये वसी व अरीज इमारत मुनफरिद अंदाज में तामीर की जाएगी। विकास राज ने ओहदेदारों, कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि नई हाईकोर्ट की इमारत मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल की जाए। यहाँ तामीराती कामों की मुकम्मल और सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए और कामों में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जो हिदायत जारी की हैं, तामीरात को इन्हीं के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। वजीर वेंकट रेड्डी भी इस इमारत के तामीराती कामों का वक्फे से जायजा ले रहे हैं और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की जा रही हैं। अमीर मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना हुस्साम उद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक मुस्लिम खातून का नकाब हटाने के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। PBN चैनल से खास बात करते हुए नीतीश कुमार की इस हरकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मौलाना जाफर पाशा ने इसे मजहबी आज़ादी और मुस्लिम खवातीन के विकार पर हमला करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़े पर न सिर्फ मुतासरा खातून बल्कि तमाम मुसलमानों से बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना ने इस मामले पर बीजेपी कायद संजय मिश्रा के रवैये पर भी शदीद नाराज़गी का इजहार किया है और कहा कि ऐसे बयानात और इक़दामात समाज में नफरत और फ़िरक़े वाराना कशीदगी को बढ़ावा देते हैं जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के CM नीतीश कुमार ने एक खातून जिसका हिजाब खींचने के मामले में काफ़ी बवाल मचा हुआ है, इसी सिलसिले में मैं बात करना चाहूँगा कि हैदराबाद के जानी मानी शख्सियत मौलाना जाफ़र पाशा उसामी आखिल साहब से कुछ बात करेंगे। सब कैसा देखते हैं एक CM ने एक खातून का जो हिजाब हटाने की बात कही है। अस्सलाम वालेकुम। ये बात आप जिक्र करने से पहले मैंने कई बार उस वीडियो को भी देखा जो ये नीतीश कुमार जो CM बने हैं, अगरचे कि वो बैसाखी पे CM है मगर अभी अकड़ नहीं मालूम होता और जिस अंदाज से उन्होंने ये हरकत की है उनको ज़ेब नहीं देता। और एक तरफ तो ये अमल किए हैं उस पर उनको शर्मिंदा होना चाहिए, मगर अफसोस ये है
कि उनको इसकी शर्मिंदगी भी नहीं है। मैं इस मामले में हुकूमत को, हुसैन नीतीश कुमार को ये मशवरा दूंगा कि वो ना सिर्फ मुसलमानों से माजरत खाई करे, बल्कि जहां आप दावा करते हैं कि हम औरतों की सेफ्टी के लिए काम करते हैं, वहां ये अमल नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले कबूल है। तब देखा गया, उसके बाद देखा जाता है कि बीजेपी के एक लीडर है, उन्होंने कुछ बात कही कि मामूली से हिजाब ही हटाया है, कोई दूसरा काम तो नहीं किया, तो उसके लिए क्या करना है? ये तो एक बेहुदापनी की बात है, और ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो जो साहब ये कहें वो बेशर्म है। अगर वो शर्म वाले रहते और उनको ये बात सामने उन्हें नजर आई है तो वो ये बात नहीं कहते कि भाई अगर निकाब हटाएं और क्या कर सकते हैं, उससे बड़ा कोई काम नहीं करे। उससे बड़ा काम करेंगे तो आप मिनिस्ट्री के काबिल कहाँ रहेंगे। और याद रखिए, ये जो बोलने की गुफ्तगू है, ये ऐसा महसूस होता है कि एक नशा चढ़ गया है, और ये नशे की जो हुकूमत के नशे इनके ऊपर चढ़े हुए हैं, इस वजह से इनकी गुफ्तगू में ये अंदाज आए गए हैं। मैं ना सिर्फ वो हमारे हुकूमत के ज़िम्मेदारों को, बल्कि वो जो साहब ये बात कहे हैं उनसे भी ये कहूँगा कि वो भी माजरत खाई करे, ताकि अवामुन्नास में जो इस वक्त बेचैनी है वो दूर हो सके। तो ये थे हमारे मौलाना अखिल साहब, जो काफ़ी मशहूर शख्सियत है। हमने इनसे कुछ बात की है, जो सीएम, जो बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हरकत की है, उसको ख़ास तौर पे ये मजम्मत करते हैं। और ये कहा जाता है कि हैदराबाद ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानी, बल्कि नहीं, कई ऐसे दुनिया के कई मुल्कों में से ऐसी आवाज़ आ रही है कि ये बिल्कुल गलत है। मजहबी हम आहंगी की रोशन मिसाल हजरत नागोल मीरा मौला चांद रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की तरक्की के लिए हुकूमत फौरी तौर पर खुसूसी फंड्स मुख्तस करे, इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना जागृति की सदर मोहतरमा कलवा कुंटला कविता ने किया है। वो एलुंदु असेंबली हल्के के तहत जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के सिलसिले में एलुंदु मंडल के सत्यनारायणपुरम पहुंची, जहां उन्होंने मजहबी रवादारी और भाईचारे की अलामत दरगाह का दौरा करते हुए खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर मोहतरमा कविता ने कहा कि यह दरगाह सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को एक दूसरे से जोड़ने का जरिया बनी हुई है, इसलिए इसकी तरक्की और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत को फौरी इक़दाम करने चाहिए। ఎమ్మెల్యేలు చాలా మంది దర్శనాలకు వచ్చినా కూడా మరి ఇక్కడ ఉరుసు జరుగుతుంటుంది, లక్షల వేల సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చినా కూడా మరి కనీస సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు రాకపోవడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు. ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 8 హెక్టార్ల జాగాలో ఉన్నటువంటి ఈ దర్గాలో ఇక్కడ మంచి రాములవారి ఆలయం ఉంది. హిందూ ముస్లిం ఐక్యతకు నిదర్శనంగా రాములవారికి పూజలు చేయడం, అదేవిధంగా దర్గా షరీఫ్ ని దర్శించుకోవడం రెండు కూడా చేస్తున్నారు భక్తులు. మరి ఈ దర్గాకి ఖచ్చితంగా ఖమ్మం జిల్లాలోనే 3 మంత్రులు ఉన్నారు, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో. వారి ముగ్గురిని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తో ఇబ్బంది లేకుండా పర్మనెంట్ గా దర్గా షరీఫ్ కి సంబంధించి ఇక్కడ స్ట్రక్చర్స్ కట్టుకోవడానికి మీరు అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా మా ఆడబిడ్డలు పెద్ద సంఖ్యలో దర్శనానికి వస్తున్నారు, వారికి కనీస వసతులు కానీ బాత్రూమ్స్ కానీ లేనటువంటి పరిస్థితి. వేల సంఖ్యలో మహిళలు వచ్చినప్పుడు దర్శనానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టయితే పర్మనెంట్ గా దర్గాకు సంబంధించిన బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్, లిమిటెడ్ పర్మిషన్ ఇచ్చినా సరే శానిటరీ ఆస్పెక్ట్ లో ఇవ్వండి. 1, 2 పైకి నీళ్లు లేనటువంటి పరిస్థితి, దాదాపు 120 బోర్లు వేసినా కూడా బోర్లన్నీ ఫెయిల్ అయినటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి వాటర్ పైప్ లైన్ ద్వారా, మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్ ద్వారా మరి పైకి నీళ్లు ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా కరెంట్ అయినా సరే వాళ్ళు చేసుకోవడం తప్పితే ప్రభుత్వం చేసింది తక్కువ ఉంది. కాబట్టి కొంత ప్రత్యేక దృష్టి ఇక్కడ దర్గా మీద పెట్టాలని, డెవలప్మెంట్ చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఈ తర్వాత 2 రోజులు రకరకాల సమస్యలతో అనేక మంది ప్రజలు మాకు మెసేజ్ల ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా, ఫోన్ల ద్వారా చెప్పినటువంటి అనేక సమస్యల్ని పరిశీలించడానికి ఇవాళ రేపు వెళ్తాం. రేపు పొద్దున మళ్ళీ కొత్తగూడెం టౌన్లోనో భద్రాచలం టౌన్లోనో మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాను. ఆ సందర్భంగా ఈ 2 రోజుల కార్యక్రమాన్ని కూడా చెప్తాను. బట్ ప్రారంభమే దర్గా షరీఫ్. हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में शहर के तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स का एक अहम आला सतही राब्ता इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने की। इजलास में साइबराबाद सीपी अविनाश मोहंती, राचकोंडा सीपी सुधीर बाबू समेत दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की, जहां शहरी सलामती, जुराइम की रोकथाम, ट्रैफिक मसाइल के हल और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर कमिश्नर सजनार ने वाज़ेह हिदायत दी कि जुराइम की इत्तला मिलते ही 0
डीले पॉलिसी के तहत फौरी कार्रवाई की जाए और ये देखा जाए कि जाए वारदात के करीब मौजूद पुलिस टीम बिला किसी दायरे इख्तियार की रुकावट के फौरन हरकत में आई। उन्होंने कहा कि मुजरिम इंतजामी हुदूद को खातिर में नहीं लाते, इसीलिए पुलिस को भी तीनों कमिश्नरेट को एक ही फोर्स की तरह काम करना होगा। इजलास में आदि मुजरिमों पर मुश्तरका निगरानी, ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ बेक वक्त कार्रवाई, जीरो इल्तवा ट्रैफिक चालानात की वसूली, भारी गाड़ियों के लिए यकसा नो एंट्री निज़ाम और शहर भर में ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया। पुलिस ओहदेदारों ने इस अज़्म का इजहार किया कि टेक्नोलॉजी और बेहतर तालमेल के जरिए हैदराबाद को महफूज शहर बनाने के लिए किसी भी मुजरिम को पनाह नहीं लेने दिए जाए। शहर के एक मॉल में अदाकारा निधि अग्रवाल के साथ धक्कम पील पर मॉल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कहा गया है कि प्रभास की आइंदा फिल्म राजा साहब के एक गीत की लॉन्चिंग शहर के एक मॉल में मुनक्कद हुई थी। इसमें अवाम की कसी तादाद शरीक रही। इस मौके पर अदाकारा निधि अग्रवाल के साथ धक्कम पील का वाकया पेश आया था और मुबैना तौर पर कुछ अफराद ने अदाकारा को घेरा ले लिया गया था। कहा गया है कि मॉल इंतजामिया के अलावा इवेंट ऑर्गेनाइजर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि दोनों ने ही इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए कोई इजाजत नहीं ली थी और बिला इजाजत ये प्रोग्राम मुनक्काद किया गया था। निधि अग्रवाल जब प्रोग्राम से वापस हो रही थी तो इनको घेर कर धक्कम पील की गई थी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। सिक्योरिटी अमले ने बाद अज़ां अदाकारा को बाहिफाजत इनकी कार तक पहुंचा दिया। शहर में झीलों और तालाबों की अराजियात पर नाजायज तामीरात और कब्जों को बर्खास्त करने के लिए सरगर्म हाइड्रा की जानिब से नौजवानों को सेहत व सफाई के कामों में आगे आने का मशवरा दिया जा रहा है। कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर एवी रंगनाथ की जानिब से इस सिलसिले में युवा आपदा मित्रा वॉलंटियर्स ट्रेनिंग शुरू की गई है। इसमें नौजवानों को तरबियत दी जा रही है कि वो शहर में किसी भी तरह के आफत, समावी और मुश्किल वक्त में फौरी मदद के लिए आगे आएं। कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर एवी रंगनाथ का कहना है, किसी भी समाज को नौजवानों की हिस्सेदारी और इनके सरगर्म रोल के बगैर महफूज नहीं बनाया जा सकता। कमिश्नर हाइड्रा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो हाइड्रा की जानिब से शुरू किए गए युवा आपदा मित्रा प्रोग्राम में हिस्सा लें ताकि मुश्किल वक्त में वो समाज की मदद कर सके। कमिश्नर ने एक हफ्ता तवील ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज करते हुए इन नौजवान वॉलंटियर्स से भी खिताब किया। शहर में लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब एक बुलंद व बाला ज़ेर तामीर इमारत के करीब शेड में सिलेंडर धमाके की वजह से आग लगने का वाकया पेश आया। चंदानगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक तामीराती साइट पर यह वाकया पेश आया, जहां एक 50 मंजिला इमारत तामीर की जा रही है। कहा गया है कि मजदूरों के क़याम के लिए बनाए गए आर्जी शेड्स में सिलेंडर धमाके की वजह से वहां आग लग गई थी। तहम चूंकि तमाम मजदूर काम के लिए चले गए थे, इसलिए वहां कोई बड़ा सानह पेश नहीं आया। आग लगने की वजह से दूर दूर तक धुआं फैल गया था। 3 फायर इंजनों को तलब कर लिया गया था, जहां काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में किसी के हलाक या जख्मी होने की इत्तलात नहीं मिली है। कहा गया है कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक सिलेंडर धमाके की वजह से वहां आग लग गई थी। आग लगने की वजह से वहां मौजूद सामान व साजो सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। हैदराबाद के ओल्ड सिटी में अमन व कानून की फिजा को मजबूत बनाने के लिए चंद्रायन गुट्टा के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बल्लागुड़ा इलाके के रौडी शीटर की खुसूसी काउंसलिंग की। इस मौके पर एसीपी ने इन्हें समाज का जिम्मेदार शहरी बनाने का मशवरा देते हुए कहा कि तशद्दुद, जुराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों से न सिर्फ इनकी अपनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, बल्कि इनके अहले खाना और पूरा इलाका मुतासिर होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर ये अफराद अपनी तवनाई मुस्बित रास्तों पर लगाएं, मेहनत और ईमानदारी के साथ रोजगार इख्तियार करें, तो वो खुद भी बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं और समाज में अमन व भाईचारा कायम रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
ACB ने वाज़ेह इंतबाह भी दिया कि आइंदा किसी भी कानून शिकनी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि अमन व इस्लाह की राह अपनाने वालों को पुलिस की मुकम्मल रहनुमाई और ताउन हासिल रहेगा। कहाँ रहते? क्या काम करते हैं? कॉपर पॉलिश। किसके पास करते काम? कितना केस है तुम्हारे ऊपर? कौन सा केस है? कोर्ट जा रहे डेली? बेसिक जा रहे? तुम्हारे साथ कितने आदमी है? और कौन है? क्या नाम है उनका? आवेद अली। कौन सा साल में करे? 2018। अच्छा, अभी बेसिक जा रहे डेली। तुम्हारा नाम? सैयद सिकंदर। कहाँ रहते तुम? इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना समेत हैदराबाद में भी शदीद सर्दी की लहर, दर्जे हरारत गैर मामूली हद तक गिर गया। मोइनाबाद में 6.7 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा दिनों सर्दी में मजीद इजाफे का इंतबाह। नामपल्ली फौजदारी अदालत के अहाते में बम रखे जाने की इत्तला। कोर्ट स्टाफ का तखलिया करवाते हुए मुकम्मल तलाशी ली गई। बम की इत्तला झूठी हुई साबित। नेशनल हेराल्ड मुकदमा मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का रियासत गिर जबरदस्त एहतजाज। वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी, इंतकामी सियासत का इल्जाम। KYC मुकम्मल ना करने वालों का राशन कोटा होगा मुअत्तल। तेलंगाना सिविल सप्लाईज का सख्त इंतबाह। हर राशन कार्ड होल्डर को बायोमेट्रिक KYC करवाना लाजमी। BRS से कांग्रेस में शामिल 5 अरकान असम्बली को राहत। स्पीकर ने नाअहल करार देने की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। फैसला जमहूरियत का कत्ल, KTR का रद्द अमल। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।